کعبہ ہدایت کرے گا۔ تو قبلہ دو گزرے، ایک بیت المقدس ہے اور ایک خانہ کعبہ ہے۔ پہلے جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا حبیب ہم تیرا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے سمجھ نہیں کر رہا، ہم تیرا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ بیت المقدس سے قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے۔ اب کیا ہوا کہ قبلہ تبدیل ہوا، رسول نے رخ کعبے کی شریف پریشان تو نہیں، قبلہ رخ کیا، کعبے کی طرف رخ کیا۔ اب توجہ کیجئے گا، اب اس کا مطلب یہ ہے بیت المقدس کا رتبہ اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن نبی کی چاہت تھی کہ کعبہ قبلہ ہو، نبی کی چاہت تھی کہ کعبہ قبلہ ہو۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی بیت المقدس سے زیادہ کعبے کو چاہتے تھے، نبی محبت جو کرتے تھے وہ بیت المقدس سے زیادہ کعبے سے محبت کرتے تھے۔ توجہ ہے نا سمجھ نہیں کر رہا، کعبے سے محبت کرتے تھے۔ جس تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی بیت المقدس سے زیادہ کعبے سے محبت کرتے تھے، اسی تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی کعبے سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے۔ توجہ کہ کعبے سے زیادہ علی سے محبت، تاریخ کے دامن میں دو دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی دلیل صحابی رسول جناب بریدہ سے ملی، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ نبیوں کے سردار سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو جناب بریدہ نے کہا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں اور مردوں میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل زوج رسول سے ملی، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے جو فکرہ کہا، انہوں نے کہا اللہ کی کائنات میں اللہ نے کوئی ایسی شے خلق نہیں کی کہ جس سے زیادہ علی سے رسول محبت کرتے ہو۔ تو اب اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا کہیں گے، عجب کیا کہیں گے، مکے والے کیا کہیں گے، مدینے والے کیا کہیں گے، کوئی ناراض ہوگا کوئی خوش ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کیا چاہتے ہیں، عجب کیا چاہتے ہیں، مکے والے کیا چاہتے ہیں، مدینے والے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے، تو پتا چلا قبلہ عبادت وہ بنے گا جو محمد چاہتے ہیں، تو قبلہ ہدایت بھی وہی بنے گا جو رسول چاہتے ہیں۔ قبلہ ہدایت بھی وہی بنے گا جو رسول بنے۔ تو کعبہ ہدایت نہیں کرتا، مولود کعبہ ہدایت کرتا۔ اب علی کی ماں اللہ کے گھر میں آئی، اللہ کے گھر میں آئی۔ چلے بات کو میں تمام کروں، وقت کے دامن میں شاید وسعت میں نہیں، اور یہی میری حاضری جو بات آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علی کی ماں گھر سے چلی، اب جو گھر سے چلی تو وہاں پہ آئی جہاں اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر تھا، سارے بات چھوڑ دی ہے اور بس نتیجے ملیں گے۔ اب علی کی ماں اللہ کے گھر میں آئی، اور جیسے ہی اللہ کے گھر میں آئی تو علی کی ماں دروازے پہ نہیں آئی، کعبے کی پچھلی دیوار پہ آئی۔ آج بعض بندوں نے یہاں اعتراض کیا اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے، علی کی ماں کعبے میں آئی، اتفاقاً کعبے کی دیوار پھٹ گئی، علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی۔ تو میں فکرہ عرض کروں گا، دیواریں اتفاقاً پھٹ سکتی ہیں، اتفاقاً جڑ نہیں سکتی۔ توجہ کہ میں فکرہ جو عرض کرنے کی کوشش کروں، اب یہاں پر بھی ہمارے ہی علماء نے ایک فکرے پہ اختلاف کر دیا۔ کسی عالم دین نے کہا کعبے کی دیوار پھٹی نہیں تھی، کعبے کی دیوار ہٹی تھی۔ دیکھیں دیوار یہاں پر بھی پھٹی ہوگی کہیں پہ، تو اب جو دیوار پھٹ جائے تو وہاں سے بندہ تو نہیں گزر سکتا، کم سے کم 2 فٹ کا فاصلہ ہو تو بندہ گزرے گا۔ تو انہوں نے کہا کعبے کی دیوار پھٹی نہیں تھی، ہٹی تھی۔ توجہ کہ لطف لے جشن ہے، فکرہ لطف لینے کے لیے ہے، میں جو میرے لفظوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کہا کعبے کی دیوار پھٹی نہیں تھی، کعبے کی دیوار ہٹی تھی۔ میں کہوں گا جنہوں نے کہا کعبے کی دیوار ہٹی تھی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور جنہوں نے کہا کعبے کی دیوار پھٹی تھی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ مولا علی کا نام صرف علی نہیں تھا، حیدر بھی تھا۔ حیدر کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، علی کو دیکھ کے ہٹ گئی تھی، حیدر کو دیکھ کے پھٹ گئی۔ اب دیوار پھٹی، علی کی ماں کعبے کے اندر، آباد رہے
अलैहिस्सलाम काबे के अंदर दीवार फिर जुड़ गई। अच्छा, बाज बंदों ने एतराज किया, इसमें कौन सी फजीलत की बात है? जब भी किसी मजहब के चाहने वालों पे मुसीबत आए तो वो अपनी इबादत गाहों पे आते हैं। तो अल्लाह के घर से बड़ी तो इबादत गाह नहीं थी, तो वो अली की माँ वहां पे चली गई। तवज्जो है ना समझ? अभी हमने चादर चढ़ाई, तवज्जो है समझ नहीं कर रहा। तो जब चादर चढ़ाने के लिए दरबार पे आए तो दरवाजे से आए थे या पुश्ती आए थे? तवज्जो है समझ नहीं कर रहा। दरवाजे थे। अली की माँ अगर दुआ मांगने गई थी तो दरवाजे पे दुआ मांगती, ये पुश्ते काबा की तरफ क्यों गई? तो इसका मतलब ये है कि अली की माँ वही गई जहां वही गई, समझ है यानी जहां अल्लाह ने वही की, जहां अल्लाह ने इशारा किया वही। आप बंदे ये भी एतराज करते हैं कि अली की माँ पे वही कैसे नाज़िल हो, तो ना नबी है ना रसूल है ना इमाम है, वही कैसे नाज़िल हो सकती है? उठाओ अल्लाह का कुरान, इसी अल्लाह के कुरान में अल्लाह कह रहे औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही कर दी। तो पता चला अगर मूसा नबी की माँ पे वही हो सकती है तो मौला अली की माँ पे वही क्यों नहीं हो सकती? वहीं पे गई जहां वही। तो अली की माँ कब के पुश्त वाली दीवार पे गई। अब जो दीवार फटी, तवज्जो है समझ? माशाल्लाह दीवार फटी। चले, शादी ने भी रुबाइयाँ पढ़ी हैं, मेरे बाद भी इरिया भाई बैठे हैं, वो भी रुबाइयाँ पढ़ेंगे। और जो हमारे नाज़िम मिंबर हैं वे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नकीब हैं, बड़ी प्यारी प्यारी रुबाइयाँ पढ़ रहे हैं। आपकी लुत्फ की खातर बस वक्त के दामन में वसअत नहीं, चंद मिसरों पे बात करता हूं माशाल्लाह। तो है ना समझ? इजाजत दो कि बस बात मेरी तमाम हो रही, जो वक्त है बस उस वक्त के अंदर रहते हुए आपके पास हदिया करके बात को तमाम करूं। अली की माँ काबे में अब 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठी है। अब देखें इस मंजर को सारे देख रहे थे, अब मक्के के लोग देख रहे थे। अब वो दौड़े और जनाब अबू तालिब के पास आए कि ये वाक़या हो गया। अबू तालिब ने फिक्रा कहा मेरे पास फुर्सत ही नहीं। काबे की दीवार जो फटी है तो काबे की चाबियां अबू तालिब के पास थी। तो जो है ना समझ? देखिए बात बंदे कहते हैं कि इसमें फजीलत वाली कौन सी बात है। एक लफ्ज होता है शुरफ और एक लफ्ज होता है शरफ। शुरफ कहते हैं मीनार बुलंद करने को और शरफ कहते हैं रुतबे को। तो जो है ना समझ नहीं कर। हम ये कहते हैं याद रखिएगा ये कोई अली की फजीलत नहीं कि अली काबे में आए, ये काबे की फजीलत है कि अली काबे में आए। ये काबे की फजीलत है। यही वजह है काबे के मीनार किसने बुलंद किए? जनाब इब्राहीम ने। अब फिक्रा लुत्फ लेना, यानी काबे के शुरफ को बुलंद किया इब्राहीम ने और काबे के शरफ को बुलंद किया अली ने। हसन तो ये काबे में अली जो आए हैं तो ये काबे की फजीलत है, अली की फजीलत। 3 दिन अल्लाह की। अबू तालिब ने कहा वक्त नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से फिक्रा कह रहा हूँ। कहा अगर वक्त नहीं चाबियां हमें दे दो, हम ताला खोल लेते हैं। अब वो चाबियां अबू तालिब से लेके जब काबे के दरवाजे का ताला खोलने लगे, खोलते खुलता नहीं, खोलते खुलता नहीं, खोलते खुलता नहीं। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब का फिक्रा, वो कहते हैं कैसे खुलता उनके मुकद्दर का ताला था। तवज्जो है समझ नहीं कर रहा हूं। अब तो ताला खुला नहीं तो अब पहले ताले की तरफ आते, फिर दीवार की पुष्ट पे जाते जहां दीवार फटी, फिर काबे की तरफ आते, ताले की तरफ आते, फिर पुष्ट दीवार की तरफ जाते, फिर ताले की तरफ आते, फिर फटी हुई दीवार के पास जाते। अब जो कुल्ले ईमान के इंतजार में चक्कर काट रहे थे, अल्लाह जाने ये चक्कर अल्लाह को कितने पसंद आए, आज तक चक्करों में डाला। तो जो है समझने का फिक्रा जो अर्ज करो। अबू तालिब नहीं आए, चलो अबू तालिब नहीं आए, रसूल को तो आना चाहिए था, नबी को तो आना चाहिए था, नबी को आना चाहिए था। नबी भी 3 दिन नहीं आए। तो जो है समझ नहीं करा। मैंने जुमे के खुतबे में फिक्रा था, आप अपने घर के कमरे को अंदर से कुंडी लगाए, 3 दिन तक सोए रहे, परेशानी नहीं। लेकिन आप अंदर दाखिल हो, अचानक से दरवाजा बंद हो जाए, एक लम्हे के लिए घबरा जाएंगे। 3 दिन अली की माँ देखें, काबे की दीवार फटी, जो है समझ नहीं, काबे की दीवार फटी। जब दीवारें फटती हैं तो लोग कदम पीछे हटाते हैं। कितना ही बहादुर मर्द क्यों ना हो, दीवार फटने लगे तो कदम पीछे हटते हैं। वो तो मस्तूर थी, वो तो बीबी थी। अब दीवार फटी तो कदम पीछे नहीं हटाए, कदम आगे बढ़ाए। आगे बढ़ना इस बात की दलील है मामला पहले से तय था, मामला खुदा से पहले से तय था। तो तीसरे दिन नबी आए, नबी दरवाजे पर नहीं आए, वहीं पे आए जहां अली की माँ आई थी, जहाँ अली की माँ आई थी। अब अली रसूल वहीं पे आए,
जहाँ अली की माँ, फिर दीवार फटी, अली की माँ अली को लेके रसूल के सामने, तो जो है सामने, तो जो है ना रसूल के सामने। अब जैसे ही रसूल के सामने आए तो अली की माँ के कायनात के बादशाह नबी ने कहा मेरा भाई कैसा है, तो जो है मेरा भाई कैसा, आपने लुत्फ नहीं लिया। अजब नहीं कि अली की माँ ने कहा हो ये तो बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है, तुम्हें कैसे पता चल गया भाई है या बहन। तो नबियों के सरदार ने कहा हो कि अगर मुझे ना पता हो तो किसे पता हो, नासर मेरा है, मांगा मैंने है, दिया अल्लाह ने, दिया अल्लाह ने है। नबियों के सरदार के हाथ पे अली आए, अली ने आंख खोली, अली ने आंख खोली। अब पहली नजर रसूल के चेहरे पे, तो रसूल ने कहा तूने दुनिया में आते मेरी जियारत की, मेरा इल्म तेरे हवाले, मेरा इल्म तेरे हवाले। तो जब कहा ना मेरा इल्म तेरे हवाले, तो फिर अली ने बोल के कहा होगा या रसूल अल्लाह अगर इल्म अता कर दिया तो फिर बताएं तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, अंजील सुनाऊं या तेरे चेहरे का कुरान सुनाऊं, तेरे चेहरे का कुरान सुनाऊं। तेरे बस बात करी सैयदादा तमाम हुई है, हर हर्फ के वजूद ने पाया है क्या नसब, माशाअल्लाह, तो जो है ना हर हर्फ के वजूद ने पाया है क्या नसब, माहौल खुशगवार है, मंजर है क्या अजब। तवज्जो कीजिए, मैं फिक्र आर्ज कर रहा हूँ, इसी पे मैं सलाम करने जा रहा हूँ, भाई के हवाले मिंबर करने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, हर हर्फ के वजूद ने पाया है क्या नसब, माहौल खुशगवार है और मंजर है क्या अजब, और सब मुनकरों पे जारी है अल्लाह का गजब, क्योंकि आया है शहरे खुदा यानी के रजब। तवज्जो की जो बात मेरी तमाम हो रही है, आया है क्या मवद्दते अलहाम को सरूर, आया है क्या मवद्दते अलहाम को सरूर, इस माँ पे ज़मीं पे उतरे हैं कई नूर। जो है जिन्हें पता है पहली को कौन आया, पांचवी को कौन आया, नवीं को कौन आया, दसवीं को कौन आया, तो पहली को आए बाकरे जाहो जलाल भी, पहली को आए, बस इन्हीं फिक्रों पे सलाम हो रहा है, बात मेरी तमाम हो रही है। पहली को आए बाकरे जाहो जलाल भी, और पांचवी को आए नकी बेमिसाल भी, और नवीं को आए असगरे जानो नहाल भी, और 10वीं रजब को आए तकी बाकमाल भी। इन चार के जहां में ऊंचे मकाम है, एक बाबुल हवायद है तो बाकी इमाम, एक बाबुल हवायद है तो बाकी इमाम है। पहली को आए बाकरे बाहो जलाल भी, और पांचवी को आए तकी बेमिसाल भी, और नवीं को आए असगरे जानो नहाल भी, और 10वीं को आए तकी बाकमाल भी। इन चार के जहां में ऊंचे मकाम है, एक बाबुल हवायद है तो बाकी इमाम है। तेरा रजब को जो आया वो वालियुल वली, आप जो फिक्र जो अर्ज करो बात यही पे तमाम। तेरा रजब को आया वालियुल वली, जिसके लिए दीवारे काबा है फट गई। तेरा रजब को आया है वो वालियुल वली कि जिसके लिए दीवारे काबा है फट गई। खोली न आंख जब तक न आए नबी, है नाम शेरे खुदा मुर्तजा अली, है नाम शेरे खुदा मुर्तजा अली। अगला फिक्रा उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक हाशिया सुन्नी की जुबान पे अली अली ना आ जाए। है नाम शेरे खुदा मुर्तजा अली, है नाम शेरे खुदा मुर्तजा अली, मुर्तजा अली, मुर्तजा अली, है नाम शेरे खुदा मुर्तजा अली। ये नाम आशिकों को सुनाने की चीज है, ये नाम मुनकरों को जलाने की चीज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह को वली मुबारक, अल्लाह को वली मुबारक, नबी को वसी मुबारक। अल्लाह को वली मुबारक, नबी को वसी मुबारक, काबे को किबला मुबारक, और अली वालों को अली मुबारक। उल्ले ईमान या ज़ुबान आ रहा है हैदरी। अल्लामा डॉक्टर तारल कादरी साहब अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक है। उनका जुमला है, वो कहते हैं मैं सोचता रहा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को काबा यानी अल्लाह ताला के घर में अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया। कह रहे मैं काफ़ी देर मुताला करता रहा, फिर एक दिन मुझे इसका जवाब मिला जब मैंने देखा कि मौला कायनात की शादी जनाब ज़हरा से हुई। अल्लाह ताला भी यही चाहते थे कि अगर दुल्हन
सरकार मुस्तफ़ा के घर की हो तो दूल्हा भी कम अज कम अल्लाह के घर का हो। शायर अहले बैत जनाब अली हैदर अलिया साहब, इनको मिंबर देने लगा हूँ। मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहे हैं अली। मनाओ जश्न के काबे में आ रहे हैं अली, खुदा के घर का मुकद्दर जगा रहे हैं अली। दीवारे काबा ने हंस के कहा, खुदा की कसम मुझे तवाफ के काबिल बना रहे हैं अली। नाराए हैदरी। शायर अहले बैत जनाब अली हैदर अलिया साहब। दुआ ज़रूर है वजह दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जतल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति फी कुल्ली साअत मिन साअतिल लैल नहार वलिय्यन व हफ़िज़न व फ़ाइदन लना व सिरफ़तन लिल मa'ina हत्ता तुस्किनहु व ज़कतअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा लि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुम्मा सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व अबनाइल हुसैन व अज़दाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अअवानिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब बुलंदर सलवात। इब्तिदा है उससे जलील के बाबरकत नाम से कि जिसके रब से कुदरत में मेरी जान है। सबसे पहले यहाँ थी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब आली मर्तबत इज़्ज़त माब मोहतरम मुकर्रम बासियत असग़र शाह साहब गर्देज़ी साहब कि जिनके तवज्जुह से आज हमारे मालिक की आमद की एक हसीन बज़म सजी। और उसके बाद ख़ुसूसन बारगाह वली असर की खिदमत में हती तबलीग और आप जितने भी मोमिनीन हो अज़ादारान और आशिकान अहले बैत तशरीफ़ फरमाएँ। अच्छे अल्फाज से अगर आपको अदबी अल्फाज से कहा जाए तो मैं चाहता हूँ उस अंदाज़ में कह दूँ कि फ़र्श पे बैठने वालों को अर्श पे बैठना बहुत बहुत मुबारक हो। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मखदूम आलमीन का कि जिन्होंने अपने बच्चों का जिक्र करने के लिए मुंतखब फरमाया। उसके बाद बासियत असग़र शाह साहब कि जिनकी तवज्जुह से आपके हसीन चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। मुसलसल 3-4 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। आज के दिन की कोशिश करूँगा अपने मुकर्रर वक्त में आसान अंदाज में नौकरी पेश कर सकूँ। मुझसे पहले किबला साहब ने बेहतरीन और वसी अजीज़ खुतबा और मुकम्मल जश्न और बरादर हैं पर जनाब शान बलंग साहब मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में खैर बरकतें अता फरमाएँ। तो है आज के दिन में जो भी आपके दिल में जो हाजतें हैं, दुआएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, हसरतें हैं, करीम करबला के सदक़े में अगली बारगाह अमीर में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाएँ। बानियान के मुंतज़मीन के रिज़्क़ इल्म, रिज़्क़ मारिफ़त, रिज़्क़ विलायत, इश्क़, मोहब्बत और अहल बैत में इज़ाफ़ा फरमाएँ। जितने बुज़ुर्गान यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं मालिक उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। बासियत असग़र शाह साहब वापसरान इनकी जो भी हाजतें हैं इस काबिश को ख़ुसूसन आज की इस काबिश को अपनी बारगाह अमीर में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाएँ। आखिर दुआ करते हैं वक्त मुख्तसर है मेरे मालिक यूसुफ़ ज़हरा की ज़बूर में ताजील फरमाएँ। दुआओं को इमाम ज़माने की पाक बारगाह तक पहुँचाएँ। सहरा दरूद करें मिलके बुलंद तरीन सलावत। मेरे ख़्याल में दरूद सबको ही आता है और हम दम दरूद वाले हैं, बम दरूद वाले नहीं हैं। कोशिश करें बाजमात हो के मुकम्मल दरूद पढ़ें। बुलंद तरीन सलावत से नवाज़ दीजिए। अच्छा एक गुजारिश करता चलूँ चूँकि बावजूद इशारा कर रहे हैं बुज़ुर्गान से तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन जितने नौजवान बैठे हैं बानियान का भी ये हुक्म कि जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए पीछे जगह थोड़ी मुश्किल बनेगी। अगर आप थोड़ा करीब आ जाएँ तो आसन और
مکمل انداز میں ڈیوٹی ہو جائے گی. نوجوان جتنے ہیں, بزرگوں کو میں نہیں کہہ رہا, جتنے نوجوان ہیں اگر قریب آ جائیں, آسان انداز میں, حسین انداز میں نوکری ہو جائے گی, مولا کا جشن ہو جائے گا. یہ سامنے جگہ بالکل خالی, اگر آپ کوشش فرمائیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یہ سامنے قریب آ جائیں جی. بسم اللہ, بلند ترین صلوات محمد. اجازت ہے, بسم اللہ جی, آغاز کیا جائے جی. بہت شکریہ. صدر سکی رہیں, سلامت رہیں, آباد شاد رہیں, سوائے غم موسم کربلا کے غم سے محفوظ رہیں. صدیوں کے انتظار کا احساس سلا دیا. جنہوں نے ساتھ دیا, جنہوں نے استقبال کیا, بہت شکریہ, میں شکر گزار ہوں. شعر کو اٹھا کے نہیں بڑی بات ہوتی ہے. جنہوں نے ساتھ نہیں کیا, میں کوشش کروں گا وہ اگلی سطر میں میرا ساتھ دے دیں. بات قبلہ والی ہے کہ جشن سننے نہیں, جشن منانے کے لیے آئے. اور آج کے دن میں تو ہر زبان بول ہی نہیں سکتی. آج کے دن میں ہر لب, ہر چہرہ, ہر ہونٹ مسکرا ہی نہیں سکتے. وہی ہونٹ مسکراتے ہیں جس کی محبت میں علی کی مہر لگی ہے. ہاتھ بھی وہی اٹھے گا جس ہاتھ پہ تائید ہوگی. صدیوں کے انتظار کا احساس دلا دیا میرے برادر اکبر بھائی شان. آپ کو معلوم ہے کہ آج میں کس انداز میں, کس جلدی میں ہوں, لیکن چاہوں گا تھوڑی سی تغیر باندھ کے آگے بڑھوں تاکہ جتنے نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہیں چلتے چلیں. بزرگوں سے تو دعا مل چکی ہے. صدیوں کے انتظار کا جان احساس دلا دیا. بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہا ہے کعبہ. جب میرے مولا کا ظہور ہو رہا کعبے میں تو کعبہ بے ساختہ بول اٹھا. میرے بھائی کی مسکراہٹ میں سلامت. بے ساختہ بول اٹھا, کعبہ بولنے شروع ہو گیا. کعبے کے الفاظ کھل اٹھے, لب ہل پڑے. آخر بات کر کے ہی کعبے نے صدیوں کے انتظار کا احساس دلا دیا. ہم نارمل گفتگو میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں قبلہ کیسے ہیں آپ, قبلہ آپ ٹھیک ہیں, قبلہ آپ کہاں گئے تھے. یہ ہمارا ایک انداز, یہ لفظ قبلہ اپنے ذہن میں رکھے اور نفسیاتی میں پڑھوں گا. صدیوں کے